fact, it is a session today because guess what? It is Thursday and it is the fourth week of the month. That means today is the investors special Parshala session. And every time in this session, what we do is we take a particular book and discuss the learnings behind it. And we believe this is the way, by reading, by learning from what we read, we can stay ahead of the curve, isn't it? So with that, hope you're all excited for this new book today. And we will begin the session now. But every time before we begin the session over here at Next Level, we have this ritual of saying our prayers. So these prayers basically represent our mission and our values and what all we believe. So we'll be starting that now. Okay. So I would request you to place your right hand on your heart and say along with me. We are on a mission to educate people about financial literacy and empower them to live a financially confident and stress-free life through our scientific money management process. We are in the world's best and noble profession because we prosper when our clients prosper. We are followers of client first, we next, and win, win, win. We always ensure that our clients get the right amount of money available to them at the right point of time through our scientific money management process. We follow all professional ethics with full integrity. We have a clear intention to create wealth and abundance that our clients can achieve all their dreams, goals, and needs. The only way we can become successful is by adding massive value in the marketplace, to our clients, to our organization, and to all our stakeholders. We always inspire, empower, and make a difference in people's life, wherever we go and whomever we meet. We work because we choose to and not because we have to. We empower people to live their desired lifestyle by helping them to achieve financial freedom. Okay, so with this, we are officially all set to begin with the session. However, today's session, as we have dedicated to books, let's talk a little bit about books. So whenever we think about books or a reader, we put this image in the mind of a person who is very studious, who is very academic oriented, who reads a lot of books always. However, if you want to be a reader, you do not have to be like that. Even if you read a page, a single page a day, and get something out of it, derive some learning out of it, you are very well a reader. And that is what the speaker for today says and believes. Yes, he is a very inspiring personality and he is on a mission to make India read. He wants to make reading simple, interesting, and fun, and not complicated at all. So yes, the speaker for today, as you would have already known by now, is a very own booklet guy, Mr. Amrut Deshmukh. And he is, yes. And he has even, he also has an app called the Booklet app where he has discussed some summaries of some of the most popular books out there. And he's also a TEDx speaker and he has won the Youth Icon Award 2020. And we are so glad to have him with us in our platform. And today he's going to discuss a book which is super intriguing and very, very relevant for today's day and age. Because today, everybody wants to understand what's their purpose. Why are they doing the things they are doing? Why are they working? Why everything is happening? And when so many whys are involved, the title of the book has to be Start with Why, written by Simon Sinek. And we are so happy to have you, sir, here. And I would like to invite Amrit sir now to get started with the session. Thank you so much, Rhea. What a wonderful introduction.
I love your enthusiasm. Well, as she rightly said, the name of today's book is Start with Why. Uh, One of my favorite writers, Simon Sinek, he's a TED Talk superstar, and his TED Talk was the first TED Talk of my life. Since then, I fell in love with TED Talks, and I must have watched more than 1,000 TED Talks till now. Yeah, TED Talks is a very big platform where great personalities come and speak for 18 minutes. Uh, so I'm going to discuss some interesting stories from this book, Start with Why. I think the name itself is so explanatory and so simple and clear that start with why. How great leaders inspire everyone to take action. I repeat, how great leaders inspire everyone to take action. The subtitle itself says that leaders are not responsible for the results. I repeat, leaders are not responsible for the results. Leaders are responsible for the people who produce results. राइट, उनका काम है लोगों को डील करना, लोगों को इंस्पायर करना. पहली कहानी which will get the concept of the book very clear. एक बार क्या होता है, एक शू कंपनीज का एग्जीबिशन होता है ऑडिटोरियम में, और उसके टॉक्स वगैरह चालू रहते हैं. तो पूरा खचाखच भरा हुआ है ऑडिटोरियम, कुछ 1,000-2,000 लोग ऑडियंस में बैठे हैं. और शायद कोई ब्रांड स्पार्क्स या ऐसा कोई ब्रांड का सीईओ स्टेज पे आता है और वो अपने जूतों के बारे में बात करता है. और शूज आर have some great technology in the sole, it is lightweight, we are coming up with deep discount offer, and we are going to disrupt the market, we have the best shoes in the market, etc etc. So उसने क्या बात की, what, कि हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. थोड़ी बहुत तालियां बजती है ऑडियंस में और फिर वो चला जाता है. देन कम्स द सीईओ ऑफ नाइकी, फिल नाइट उसका नाम है. नाइकी ब्रांड आपको पता है, टिक मार्क वाला, जस्ट डू इट उनका टैगलाइन है. और फिल नाइट बात करने लगता है एंड ही सेज, ऑल द 2,000 पीपल इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी ऑफ यू रन. कितने लोग हैं ऑडिटोरियम में जो रोज भागते हैं, रनिंग करते हैं. तो कुछ महज 20-25 लोग खड़े हो गए. फिर बोला उसने कि जो खड़े हैं 25 लोग, उनमें से कौन है जो हफ्ते में कम से कम 5 बार, तो 5 दिन भागते हैं, रनिंग करते हैं. तो फिर 25 में से कुछ 5 लोग बैठ गए और 20 लोग खड़े रहे. एंड यू नो व्हाट ही सेज, he says, we are for you, we are for those who, no matter whether it is wet or dry outside, they push your butt out of bed and run at 6 a.m. in the morning. We are standing at the 4th mile to cheer you up. We are the Nike people. और जल्लोश पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंजने लगा. एंड द होल मैसेज ऑफ द बुक is hidden in this story. देखो स्पार्क्स वाले ने क्या बोला, अपने जूते के बारे में बोला. और फिल नाइट, नाइकी के ओनर ने क्या बोला, अपने जूतों का जिक्र भी नहीं किया. ही स्पोक अबाउट हिज व्हाई, ही स्पोक अबाउट हम क्यों कर रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं. स्पार्क्स वाले ने मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, मतलब मेरा ऑफर क्या है, व्हाट के बारे में बात की, और उसने व्हाई के बारे में बात नहीं की. पर नाइकी वाले ने क्या किया, उसने अपने व्हाई के बारे में बात की, व्हाट के बारे में बोला ही नहीं. दैट्स द होल मैसेज ऑफ द बुक. अभी हुआ क्या होगा जब उसने जूतों के बारे में बात ही नहीं की. जो 20 लोग खड़े हैं वो तो 7वें आसमान पे चले गए. उनको लगा वाओ, आई एम द नाइकी मैन, आई एम द नाइकी वुमेन, राइट. और जो बैठे हैं ना, उनको क्या लगा होगा, अरे यार, आई मिस्ड आउट दैट स्पेशल सर्कल ऑफ पीपल, ऑफ नाइकी पीपल. मे बी आई वुड लाइक टू बिलोंग टू दैट स्पेशल ग्रुप ऑफ नाइकी पीपल. समझा. सो व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि मेरे प्रोडक्ट्स किस किस टाइप के लोगों के लिए बने हुए हैं, मैं उनके लिए ही खड़ा हूं, तो क्या होता है, व्हेन यू नैरो डाउन योर ऑडियंस, तो फिर जो बचे हुए लोग हैं ना, उनको भी दे वुड वांट टू बिलोंग टू दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ नाइकी. गॉट इट.
देखो नाइकी क्या, उनके एड्स देखो आप जाके 1980s 1990s के एड्स जाके देखो. दे रिवॉर्ड द एथलीट्स, दे रिवॉर्ड माइकल जॉर्डन, दे रिवॉर्ड हुसैन बोल्ट, या दे रिवॉर्ड रॉजर फेडरर. They say that we are for the athlete in you, we are for those world class athlete mentality people. अभी देखो एक आम तौर पे कोई और ब्रांड रहता तो क्या सोचता, ऐसे जिसको इसके बारे में पता नहीं है स्टार्टिंग वाई के बारे में, अरे अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स वालों को टारगेट करेंगे तो नॉन स्पोर्ट्समैन पीपल तो हमारे जूते नहीं खरीदेंगे. पर मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने नाइकी के शूज एक बार तो खरीदे हैं लाइफ में, और कितना उस और जिन्होंने खरीदे हैं उसमें से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कितने लोग हैं? बहुत ही कम रहेंगे. यू गेट द पॉइंट कि शुरू में हमको लगता है कि वी आर सैक्रिफाइसिंग अ बिग सेगमेंट ऑफ द मार्केट बाय टारगेटिंग ओनली वन नैरो टाइप ऑफ ऑडियंस. पर ऐसा नहीं है. शुरू में सेल कम होगा पर लॉन्ग रन में जो लोग हैं जो वो चाहेंगे कि वो नैरो ग्रुप के मेंबर बने. सेम गोज विद एप्पल, राइट? एप्पल का मार्केट शेयर कितना है पता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स? नॉट मोर देन 15% ऑफ द होल ऑफ अमेरिका. बट द रेवेन्यू, पैसा कमा रहे हैं रिमेनिंग 85% जो मोबाइल मार्केट है ना, उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं एप्पल वाले. बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि हम इन्हीं लोगों के लिए हम हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. क्या अभी उनका वॉइस ढूंढते क्या है? गो बैक 1984 का एक एड था उनका, पहला एड, जब मैकिंटोश कंप्यूटर उन्होंने बनाया था. उन्होंने क्या दिखाया? गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. कंप्यूटर दिखाया है नहीं, और बोले कि वी आर द चेंज मेकर्स, वी आर क्रेजी मिसफिट पीपल, वी लव टू चैलेंज द स्टेटस को, वी आर द चेंज मेकर्स. और जो जो दुनिया के इतिहास के चेंज मेकर्स है ना, उनके फोटोज दिखाए उन्होंने. मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है. और देखो आप वैसे ही वो उनके काम में भी दिख जाता है. अब एक मोबाइल कंपनी एक म्यूजिक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करती है, ऐसे कैसे हो सकता है? आईट्यून्स उन्होंने लाया है, राइट? पहले के जमाने में अगर आपको कोई गाना पसंद है तो पूरा का पूरा सीडी खरीदना पड़ता था. मतलब वो एक गाने के लिए पूरे 20 गाने खरीदने पड़ते थे. वो पूरा चैलेंज कर दिया स्टेटस को. और उन्होंने क्या लाया? आईट्यून्स लाया कि आप एक गाने का पैसा दो, सिर्फ आपको एक गाना पसंद है, सिर्फ एक गाने का. एंड टुडे आपको पता है सब जगह पे ऐसा हो गया है, बट दे वर द पायोनियर्स. ओके, तो आप कोई भी एप्पल ओनर का देखो, जो मैक, जिसके पास मैकबुक है, जिसके पास आईफोन है, वो कैसे एकदम साफ रखते हैं अपना मैकबुक, एकदम चकाचक. वही आप बाकी के देखो, एचपी या सैमसंग के मोबाइल वो कैसे भी यूज करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि सैमसंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वॉच. वो हमेशा अपने फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा अनब्रेकेबल गोरिल्ला ग्लास है, हम 200 GB का मेमोरी लेके आ रहे हैं, हमारे में ये है, हमारे वो है. फीचर्स के बारे में. आईफोन क्या करता है? दे टॉक अबाउट देयर व्हाई, नॉट द वॉच. और वही पर्पस, वही मैसेज ऑथर देना चाहता है कि उसने गोल्डन सर्कल उसको नाम दिया है. गोल्डन सर्कल में सबसे बीचों बीच है व्हाई, उसके बाद आता है हाउ, उसके बाद आता है व्हाट. सो आपका जो जर्नी है, आपका जो पिच है, जो भी पिच आप कर रहे हो, वो इनसाइड आउट होना चाहिए. स्टार्ट विथ व्हाई, देन हाउ, एंड देन व्हाट्स. ये व्हाई हाउ व्हाट होता क्या है? व्हाई इज योर बिलीफ सिस्टम. आपका बिलीफ, आपके वैल्यूज. you stand for the, you don't stand for the products and services, you stand for the higher purpose, उसके ऊपर का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, उसने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है. पहले ना, पहले के जमाने में बर्फ, जब एकदम मैं बोल रहा हूँ 100 साल पहले, उसको आइस ब्रेकर्स बोलते थे. जो बर्फ का धंधा करते हैं ना, उनको आइस ब्रेकर्स बोलते थे. मतलब जो लेक या पॉन्ड्स में जो बर्फ जम जाता था ना, उसको तोड़ के वो जाके शहरों में बेचते थे. फिर क्या हुआ कि आइस फैक्ट्री का निर्माण हुआ. अभी देखो, दो तरीके के आइस ब्रेकर्स थे. एक ने क्या सोचा कि मैं तो बस आइस ब्रेकर हूं, तब ही थॉट दैट ही स्टैंड्स फॉर हिज प्रोडक्ट.
पर कुछ आइस ब्रेकर ने क्या सोचा, नो मैं आइस ब्रेकर नहीं हूं, मैं आइस लोगों को ठंडक पहुंचाने का काम करता हूं। ही थॉट अबाउट द हायर पर्पस, नॉट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जिन्होंने, जो आइस ब्रेकर से सोचा कि नहीं मैं ठंडाई के बिजनेस में हूं, मैं ठंडी चीजें देने के बिजनेस में हूं, वो लोग ने आइस फैक्ट्री डाली, काम वही कर रहे हो आइस बेचना। पर जबकि टेक्नोलॉजी नहीं आए तो जो पुराने सोच वाले हैं कि नहीं मैं तो बस आइस तोड़ने वाला हूं, दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। बट पीपल हु थॉट अबाउट देयर व्हाई, कि नहीं मैं बस मैं चीजों को ठंडा करने के लिए लोगों को मदद करता हूं, जब ये सोचा, दे सर्वाइव एंड दे अपडेटेड देमसेल्व्स एंड केम आउट विद आइस फैक्ट्रीज। फिर कुछ सालों के बाद रेफ्रिजरेटर का निर्माण हुआ कि आपको आइस के लिए आइस फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आप आपका खुद का आइस घर पे बना सकते हो। अब आइस फैक्ट्री वालों ने क्या सोचा, वहां पे भी दो तरीके के आइस फैक्ट्री ओनर्स आ गए। कुछ ने सोचा कि हम बर्फ बेचते हैं, तो जिन्होंने सोचा कि हम बर्फ बेचते हैं वो वहीं पे मर गए, बिकॉज रेफ्रिजरेटर का निर्माण हो गया। और जिन्होंने ये सोचा कि नहीं हम लोगों को बर्फ बनाने में हेल्प करते हैं, हम ठंडाई के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे स्विच टू रेफ्रिजरेशन। पर्सनलाइज रेफ्रिजरेशन आ गया और फिर घर घर में रेफ्रिजरेटर आ गया। आपको आज की तो बहुत आम बात है, तो कौन सा घर है जिसके जिसके घर में फ्रिज नहीं होता। तो सी हाउ आपके अप्रोच से पूरा तय होता है कि आपका लॉन्ग टर्म जर्नी होता है या बीच में आप बैंकरप्ट हो जाओ। जो आइस ब्रेकर ने सोचा कि मैं आइस ब्रेकर हूँ वो तो खत्म हो गया। फिर जिसने सोचा कि मेरा आइस फैक्ट्री का धंधा है वो भी खत्म हो गया। पर जिसने सोचा कि नहीं मैं एक हायर पर्पस के लिए हूँ, कि चीजों को ठंडा करने का मेरा काम है, तो वो आइस ब्रेकर से आइस फैक्ट्री में आ गया, आइस फैक्ट्री से रेफ्रिजरेटर पे आ गया। अभी इसके आगे क्या हो सकता है मुझे पता नहीं। जो लोग सही सोचेंगे वो आगे बढ़ेंगे, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। आई होप यू गॉट। आप जो भी बिजनेस में हो, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पाठशाला, ये कौन से बिजनेस में है, तो यू डोंट सेल द म्यूचुअल फंड्स, you are for the higher purpose. What is that higher purpose? To make people financially free. You are the guidance of financial freedom. जब इसके बारे में, that is your why. And what's क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, फलाना फलाना ये वो। एंड व्हाट्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। बट सो जब ये बुक पढ़ने के बाद मेरा अप्रोच कितना चेंज हो गया। इनिशियली जब मैंने मिशन शुरू किया था 2015 में, आई वाज टॉकिंग अबाउट बुकलेट ऐप, बुक समरीज। तो धीरे धीरे ये बुक पढ़ने के बाद समझा कि नो, आई डोंट स्टैंड फॉर बुकलेट ऐप और बुक समरीज, आई स्टैंड फॉर द हायर पर्पस ऑफ रीडिंग हैबिट। तो मेरा भाई क्या बन गया, to cultivate reading habit amongst the youth of India. That's my why. What is my how? How do I do that? By reading books for you and making summaries for you. And what is the what? What is booklet app? So why क्या है? आपका personal value system, आपके beliefs. मेरा belief क्या है? That if I'm not reading, I'm not changing. If I'm not changing, I am not growing. राइट। तो ये बिलीफ को साकार करने के लिए मैं क्या करता हूं, आई एम ऑन अ मिशन टू कल्टिवेट रीडिंग हैबिट अमंग्स द यूथ ऑफ इंडिया। दैट इज माय हाउ। व्हाट इज माय व्हाट? बुकलेट ऐप और फिर मेरी किताब। व्हाट्स अनेक हो सकते हैं, व्हाट्स चेंज भी हो सकते हैं, पर व्हाई कभी नहीं बदलेगा। अगर कल कल की तारीख में एंड्रॉइड ये चीज ही बंद हो गई, खत्म हो गई, तो मैं ऐप लेके क्या करूंगा? मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ कुछ नया करना पड़ेगा। अभी देखो कैसे मेरा अप्रोच हैज एंटायरली चेंज माय जर्नी। अगर मैं सोचता कि मैं किताबों के बिजनेस में हूं, तो शायद मैं कोई लाइब्रेरी खोलता या किताबों का दुकान डालता। तो मैंने क्या सोचा, नो, आई सेड फॉर रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट मतलब क्या? किताबों के अंदर के आइडियाज को जागृत करना, फिर वैसे वैसे आइडियाज आने लगे। तो देखा, आपका जब वाइब जब एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, तो आपका जर्नी एकदम अलग हो जाता है। आपको पता है बुकलेट ऐप के अलावा 100 से भी ज्यादा रीडिंग एप्स इंडिया में है, 100 से भी ज्यादा। और उनके हार्डली कोई डाउनलोड्स, 1000-2000 डाउनलोड्स, और हमारे साथ 40 लाख लोग जुड़े हुए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि मैं उनसे अच्छे बुक समरीज बनाता हूँ, वो तो व्हाट है, पर वो सब जो 100 के 100 ऐप ओनर्स है ना, रीडिंग ऐप ओनर्स, उनका व्हाई मिसिंग है। उनको लगता है कि दे स्टैंड फॉर दैट बंच ऑफ कोड, एल्गोरिदम ऑफ दैट बुकलेट ऐप, और बुक समरी बनाने का जॉब उन्होंने डिलीगेट कर दिया किसी और को।
they themselves were not passionate about reading books. उनके घर में कुछ बुक किताबें भी नहीं है. मैंने क्या किया? I stuck to my why. I live my why every minute. मेरे रगों रगों में है कि बुक्स, आई रीड बुक्स, आई स्मेल बुक्स, आई स्लीप विद बुक्स. मेरे टॉयलेट में भी बुक्स है, मेरे किचन में भी बुक्स है, मेरे शू रैक के ऊपर भी बुक्स है, मेरे बेडरूम में बुक्स होते हैं, सब जगह बुक्स है. और इसके लिए आप लोग मेरी तरफ आकर्षित हो गए. वरना बुकलेट ऐप में भी बग्स हो सकते हैं. ऐसा कौन सा भी ऐप नहीं होता है दुनिया में जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, बग्स नहीं है. बट दैट इज द व्हाट में अगर प्रॉब्लम है, बट पीपल बिलीव इन योर व्हाई, दे विल, वो आपके व्हाट के प्रॉब्लम्स को माफ कर देंगे और बोलेंगे अरे वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, बट आई एम विथ यू, आई एम विथ योर मिशन. गॉट इट? पीपल कम टू यू फॉर व्हाई यू डू, नॉट फॉर व्हाट यू डू. आई रिपीट, ये लाइन उसने 1000 बार रिपीट की है पूरी बुक में. पीपल कम टू यू फॉर व्हाई यू डू, नॉट फॉर व्हाट यू डू. तो आपके व्हाट के बारे में बोलना बंद करो प्लीज, और व्हाई के बारे में बात करो. आपको आपका व्हाई ढूंढना है, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यूजुअली हम व्हाई हमको पता रहता है, हमको बात करने को वो शर्म आती है उसके बारे में. वो कहीं ना कहीं मिशन विजन स्टेटमेंट पड़ा रहता है कैटलॉग के किसी कोने पे, और वो सब भूल जाते हैं. नहीं, रोज उसके बारे में बात करनी है आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, रोज. अभी मैं कुछ आपको किस्से सुनाऊंगा जो मेरी जाती जिंदगी में हुए, जिससे आपको पता चला कि व्हाई का कितना इंपॉर्टेंस है. ऑफ कोर्स कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ द बुक इन माइंड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयल कस्टमर्स एंड रिपीट बिजनेस. रिपीट बिजनेस क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर को कोई बेहतर डील मिला आपसे, तो तुरंत उसके पास चला जाएगा. उसको कोई अच्छा डिस्काउंट मिला, कोई थोड़ा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया, तो वो आपके बाजू वाले के पास चला जाएगा. पर लॉयल कस्टमर कौन होता है? जो आपके व्हाई में बिलीव करता है, हु शेयर्स योर कल्चर, योर वैल्यूज, योर बिलीव्स. वो कस्टमर लॉयल होता है. तो वो कोई भी, वो सिर्फ वो ना कोई बेहतर प्रोडक्ट या कम दामों में कोई प्रोडक्ट मिला तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा. और इसलिए देखो आप साइज वाइज आप देखोगे तो रिलायंस एज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इज मच मच बिगर देन टाटा ग्रुप, है ना? एम आई राइट? रिलायंस प्योर, अगर पैसों के मामले में देखेंगे, फ्रॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंटायर रिलायंस ग्रुप में जितने भी कंपनियां हैं उसका टोटल मिलाएंगे तो इट इज मच मच बिगर देन टाटा ग्रुप. एम आई राइट? राइट? यस और नो? या. लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखोगे सबसे ज्यादा रतन टाटा और टाटा के वैल्यूज दिखते हैं हमको लिंक्डइन पे कोई पोस्ट. whereas धीरू भाई अंबानी, रिलायंस के ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड पीपल, मैं बस कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखो दोनों में कितना फर्क है. हमको लगता है कि जिसके पास पैसा है हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल है टाटा वर्सेस रिलायंस. कोई एक मैंने ऐसा पोस्ट भी पढ़ा था कि जब टाटा कुछ खरीदता है किसी को, जैसे अभी टाटा ने बिस्लरी को खरीदा है, तो हम या किसी एयरलाइन को खरीदा उन्होंने अभी और विस्तारा, तो हमको सुकून मिलता है कि चलो अभी हमको अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. और जब कोई रिलायंस किसी को खरीदता है तो हमको डर लगता है कि अभी हमारी लग गई. ऐसा एक जोक था, पता नहीं वो सही है कि नहीं. मुझे रिलायंस के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है. पर दोनों को एक एग्जांपल बताने के लिए मैंने बोला टाटा वर्सेस रिलायंस. So this is what, people come to you for why you do, not for what you do. Reliance के आप एड्स देखो कैसे हैं, वो हमेशा अपने व्हाट्स के बारे में बात करते हैं, है ना? All right. So you understood the difference between repeat customer and loyal customers, or repeat business and loyal customers. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुरू में तो व्हाई बहुत क्लियर होता है लोगों का. जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो हो जाता है ना, तो वो व्हाई से भटकने लगते हैं लोग. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. जब लोग जब शुरू में आपको बहुत दिक्कत रहती है, अपॉर्चुनिटीज कम आते हैं, जैसे 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 आपका बिजनेस बढ़ता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, रीच बढ़ता है, ज्यादा लोग आपको पहचानने लगे हैं, फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आसानी से आने लगते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर कंपनी. एम आई राइट? और फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने लगते हैं तो हम सब अपॉर्चुनिटीज लेने लगते हैं. हमको लगता है अरे ये सब हमारे लिए है, हम सबको हाँ बोलना शुरू कर दिए.
पर प्रॉब्लम क्या होता है, इफ दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट अलाइंड विथ योर व्हाई, it is not nicely syncing with the purpose with which you started at the first place, then it is not an opportunity, it is a distraction, it is a distraction. मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। लॉकडाउन में मुझे लॉकडाउन के 1 महीने के बाद मुझे विको वज्रदंती से कॉल आया। उन्होंने आलिया भट्ट को लेके कोई अच्छा सा जिंगल बनाया और बोले कि आपके पास 40 लाख लोग हैं और हमने आपका थोड़ा एनालिसिस किया है, आपके पास एकदम रिच, बहुत पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग तुम्हारे कम्युनिटी में हैं, तो और हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, वीको एजेंसी का टूथपेस्ट थोड़ा महंगा रहता है बाकी टूथपेस्ट से, तो आपका जो बुकलेट ऐप है वो आइडियल हमारे लिए है। हम वो मुझे 3 दिन के लिए, 3 दिन उनका वीडियो ऐड रन करने के लिए बुकलेट ऐप में मुझे कुछ 6 लाख रुपए दे रहे थे। और फिर मैंने बोला कि व्हाट इज माई वाई, वाई इज टू मेक इंडिया रीड, इट इज नॉट मेक इंडिया रीड एड्स। और फिर बुक्स और टूथपेस्ट का क्या लेना देना। सी, सो व्हेन आई वेंट बैक टू माय व्हाई, making decisions become very clear, it becomes easy, and I said no, sorry, books and toothpaste, no way. हाँ, अगर कोई ऑथर है उसको अपना बुक का प्रमोशन करना है, यस इट इज परफेक्टली सिंकिंग विथ माय व्हाई, राइट। अगर साइमन सिनेक बोलेगा कि मुझे मेरा बुक का प्रमोशन करना है तुम्हारे ऐप पे, यस परफेक्ट, इट इज नाइसली इन सिंक विथ माय व्हाई, इट इज अलाइनिंग विथ माय व्हाई, राइट। तो सी हाउ दिस इज वेरी क्लियर। और आपको लगता होगा कि ये जो टॉप प्रोडक्ट्स है दुनिया में वो उनके टेक्निकल चीजों की वजह से, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम। आपको क्या लगता है, आप हर एक इंसान के मोबाइल पे व्हाट्सएप है? हाँ, अभी अभी कितने लोग हमारे रूम में है, 100-200 लोग हैं, कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में फेसबुक ऐप है? मैं बोलता हूँ कि 70% लोग बोलोगे हाँ मेरे मोबाइल में फेसबुक है, 30% लोगों के पास फेसबुक नहीं रहेगा। और जब मैं पूछूंगा व्हाट्सएप किसके किसके पास है, ऑलमोस्ट 100% लोग बोलेंगे कि मेरे पास व्हाट्सएप है। एम आई राइट? ऐसा कोई है कि जिसके पास व्हाट्सएप ऐप नहीं मोबाइल में? हाथ ऊपर करो, देखो एक भी नहीं है। ओके, आपको पता है टेलीग्राम एक करके एक ऐप है, टेलीग्राम ऐप गिव्स मोर फीचर्स देन व्हाट्सएप, इनफैक्ट टेक्निकली इट इज मोर सुपीरियर देन व्हाट्सएप। फिर भी टेलीग्राम अपनी लेवल पे है और व्हाट्सएप पूरी दुनिया में है। ऐसा क्यों, किसको लगता है? कोई मेरे को आंसर दे पाएगा? जिसको पता है टेलीग्राम के बारे में, जिसने टेलीग्राम देखा है और व्हाट्सएप को हमने सबने देखा है, किस, मैं ये सवाल सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे आपको क्या लगता है कि व्हाई यू आर यूजिंग व्हाट्सएप सो मच? बिकॉज इट इज टेक्निकली परफेक्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, प्राइवेसी, ओके विकास इज सेइंग प्राइवेसी, Telegram is distraction and not personal, user friendly, instant gratification, visual, too much of data. Okay, okay, Nikhil. Connectivity, network effect, marketing. Marketing, WhatsApp ने कब marketing की भाई? Easy to use. All right. I think WhatsApp is convenient, lack in communication. It's why. Okay. Okay, Viral. User friendly. Keuri is saying it is user friendly, font size is big, voicemail is there, we can believe WhatsApp, what why is clear, its popularity is mass. अरे वही तो सवाल है कि पॉपुलरिटी क्यों है? Everybody use it, why people are using it? Okay, ट्रेंडिंग है, सबने जवाब दिया, पर सब में एक चीज मिसिंग है। और यही बढ़िया बात है कि why इतना इतना डीप रहता है ना, हमको पता ही नहीं रहता है कि जो प्रोडक्ट हमको पसंद है वो क्यों पसंद है, बस हमको पसंद है। और जो भी रीजन दिए ना उसमें से असली रीजन किसी ने बताया नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि हम सब के पास व्हाट्सएप क्यों है और व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट्सएप ऑलमोस्ट एवरी डे 10 टाइम्स इन अ डे। आपको पता है कि फेक मैसेजेस बहुत आने लगे थे, फेक न्यूज इंडिया में बहुत आने लगे थे, और फिर व्हाट्सएप ने एक फीचर लाया कि आप जो फॉरवर्डेड मैसेज है वो 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नाउ दिस वाज डायरेक्टली अगेंस्ट देयर बेनिफिट,
व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग, उनका काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेशन करवाना। तो वो क्या पागल है कि खुद का बिजनेस कम करने के लिए उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लाया था कि आप देखो कोई भी मैसेज आप 5 से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक साथ। एम आई राइट? पहले वो फीचर नहीं था, बाद में आया, राइट? आपको पता है कि इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप हो, इंस्टाग्राम पे आप कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं दे सकते। आप कोई दूसरे वेब एक्सटर्नल लिंक इंस्टाग्राम के पोस्ट पे नहीं डाल सकते। व्हाट्सएप को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्यूब का लिंक दे सकते हो, आप लिंक्डइन का लिंक दे सकते हो। सो देखो उनके वैल्यूज कितने क्लियर है। कोई भी स्पैम मैसेजेस आते हैं क्या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे? कुछ स्पैम मार्केटिंग, कुछ ये अचानक से कोई अनजान मैसेज आता है क्या? रेयरली आता है, बहुत रेयरली। बस जिसका कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल में सेव्ड है उसी से आता है। मतलब इस पे उन्होंने कितनी मेहनत की है, ये स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। वेराज टेलीग्राम देखो, आज टेलीग्राम क्या हुआ है, एक पायरेटेड मूवीज का हब हो गया है। और वो पायरेटेड मूवीज पे कौन इंटरेस्टेड होता है? एक टिपिकल एक क्लास होता है सोसाइटी में, जो जिनको सब फ्री में चाहिए, और यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, जिनको पैसा खर्च नहीं करना है, नो, वो सब ऑडियंस आ गया। सो सी देयर इज क्लियर लैक ऑफ वैल्यूज इन टेलीग्राम, whereas technically telegram is much much superior than whatsapp, बट वी सी। और आपने सब में जो आंसर्स दिए कि आपको क्यों व्हाट्सएप पसंद है, सरप्राइजिंगली उसमें से वो रियल रीजन है नहीं। वो सब आपने रीजन बोले वो टेलीग्राम के पास भी है। इनफैक्ट द व्हाट ऑफ टेलीग्राम इज बेटर देन द व्हाट ऑफ व्हाट्सएप, बट द व्हाई इन टेलीग्राम इज कंप्लीटली मिसिंग। वो बस फीचर्स पे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। आप इंस्टॉल करके देखो, वो इतना डिस्टर्ब करते हैं आपको, नो, इससे चैट करो, उससे चैट करो, बार बार कुछ ना कुछ आता रहता है। व्हाट्सएप ने ऐसा कभी नहीं किया। कभी भी कोई ऐड देखिए व्हाट्सएप में अभी तक आपने? वो पागल है क्या ऐड नहीं डालने के लिए? वो पैसा बना सकते थे। उन्होंने कितना डिले किया अपना मोनेटाइजेशन। अभी वो बिजनेस व्हाट्सएप कितने सालों बाद आ गए, विच इज वेरी स्मार्टली ड्रिवन। उससे हमारा ये हम डिस्टर्ब नहीं होते। जिसको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट शुरू करना है वो कर सकते हैं। अभी बॉट्स आने लगे हैं कि मेक माई ट्रिप पे अगर आपने कोई फ्लाइट बुक किया तो उसका कंफर्मेशन टिकट व्हाट्सएप पे आ जाता है। परफेक्ट, वी आर ओके विद इट, इट्स नॉट स्पैमिंग। लेकिन मैंने किया है और उसका कंफर्मेशन आकर मेरा टिकट मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो इट्स परफेक्ट। अगर आइडिया आइडिया का मैंने अभी कुछ मेरे मोबाइल पे फ्लैश मैसेजेस आ रहे थे, उसको बंद करना था, तो मैंने वो एसएमएस पे क्लिक किया, मेरे व्हाट्सएप पे लेके गए और मैंने व्हाट्सएप पे वो फ्लैश मैसेजेस डीएक्टिवेट कर दिया। आई वाज ओके विद दिस। सो देखो कितना डीप है ये। हमने कभी सोचा है कि ये व्हाट्सएप के वैल्यूज की वजह से हमको व्हाट्सएप पसंद है? एंड वैल्यूज इज नथिंग बट योर व्हाई। Why is nothing but your personal set of values, your belief system, your culture. ऑल राइट, आपका कल्चर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब इंपॉर्टेंट है। वो वॉल्ट डिज्नी, ऐसा नहीं, वॉल्ट डिज्नी का आप कोई भी पिक्चर देखो एनिमेशन, उसमें कुछ कभी भी कोई वल्गैरिटी नहीं रहेगी। इट इज क्लियरली फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट, वो उनका वाई है। बाकी के आप देखोगे ना तो थोड़ा एडल्ट कार्टून्स होते हैं, वल्गर जोक्स होते हैं। वॉल्ट डिज्नी का अगर पिक्चर है एनिमेशन, तो माँ बाप बेझिझक ब्लाइंडली अपने बच्चों को वो देखने देते हैं, राइट? दैट इज देयर व्हाई, वी आर फैमिली एंटरटेनर्स, राइट? इसलिए वॉल्ट डिज्नी इज वॉल्ट डिज्नी। ऑल राइट, लीडरशिप के बारे में काफी इसमें बोला है। तो लीडरशिप मतलब हमको क्या लगता है, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, उस वो लीडरशिप नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी के सीईओ हो तो फिर आप लीडर बन गए। नो, एन एम्प्लॉई कैन बी द लीडर ऑफ हिज बॉस, अ डॉटर कैन लीड हर डैड, हर फादर, राइट? अ वाइफ कैन लीड हर हस्बैंड। ये सब हो सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ सन hands over the TV remote to his mother and says that आपको जो फेवरेट सीरियल देखना है देख लो टीवी पे, while he is secretly sacrificing his cricket match on the TV, he becomes the leader of the house. It's called servant leadership. Leadership is all about empathy, about thinking from other person's point of view and serving more and more people. Leaders eat last is the second book written by Simon Sinek.
लीडर्स ऑलवेज ईट लास्ट। देखिए इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। google.com, हम सब लोग इस पे गए हैं google.com पे। जब हम google.com टाइप करते हैं तो एक क्या होता है, एक व्हाइट कलर का स्क्रीन दिखता है आपको जो 90% ब्लैंक है, और बीच में एक सर्च बार होता है, एम आई राइट, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अभी मुझे बताओ, पूरी दुनिया इस पेज पे कम से कम 4 से 5 बार जाती है, पूरी दुनिया। यस विकास, आप दिन में कितने बार गूगल पे जाते हो? 5 से 6 बार तो जाते हो आप, कुछ ना कुछ सर्च, कोई वर्ड का मीनिंग देखने के लिए, किसी का कुछ देखने के लिए, कुछ आर्टिकल पढ़ने के लिए, हम वो सब करते हैं। अभी मुझे बताओ, ये गूगल के लोग पागल है क्या कि ये जो मेन उनका पेज है जिसपे पूरी दुनिया लैंड करती है, उसमें एक भी एड नहीं है? कभी देखा है कोई एड google.com पे? क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं है इसलिए वो नहीं है? मतलब रिलायंस जैसे कंपनी करोड़ों देने को रेडी रहेंगे ना ये पेज पे ऐड डालने के लिए google.com पे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिकॉज ऑफ देयर व्हाई वाज वेरी क्लियर कि नहीं, वी स्टैंड फॉर सर्च इंजन, कि लोगों को पूरे वेब को सर्च करना ये हमारा पहला मकसद है, और पैसा कमाना सेकेंडरी मकसद है। और उसकी वजह से उनको नया रेवेन्यू मॉडल मिल गया। When Google came out with this idea, all the investors found it very stupid idea. Yes, all the investors turned down that Google तो नहीं चलेगा, ये क्या, क्यों पता है? एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो क्यों टर्न डाउन किए, बहुत लॉजिकल उनका आंसर था। तो पहले के जमाने में गूगल के पहले क्या होता था, वेबसाइट्स तो थे, बहुत सारे थे, और सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या था? पुटिंग एड ऑन अ वेबसाइट। तो जो जो इंसान वेबसाइट पे जाएगा वो मैक्सिमम टाइम बिताएगा उस वेबसाइट पे, तो उसका एड रेवेन्यू वेबसाइट के लिए ज्यादा रहेगा। सो द टाइम स्पेंड ऑन व्हाट और ऑन द वेबसाइट शुड बी हाई। हायर द टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट बाय ईच यूजर, हायर द रेवेन्यू, एड रेवेन्यू। ये लॉजिक था। whereas गूगल ने एग्जैक्टली उसका उल्टा किया। Google encourages you to hop from one website to another because it gives you the entire list of relevant websites. अगर आपने कुछ टाइप किया that पनीर रेसिपीज फॉर कीटो डाइट, ऐसा आपने कुछ सर्च किया, तो आपको गूगल कितने सारे देगा हिट्स? 1000 हिट्स देता है ना। पेज नंबर 1 2, हम पेज नंबर 1 के आगे जाते ही नहीं कभी, तो पेज नंबर 1 पे 8-10 वेबसाइट्स के नाम देता है वो, बरोबर। फिर आप क्या करोगे, वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट खोलोगे, थोड़ा बहुत देखोगे, फिर दूसरा वेबसाइट खोलोगे, थोड़ा बहुत देखोगे। तो इन्वेस्टर्स को क्या लगा कि ये तो एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं, दे आर एनकरेजिंग द यूजर टू कम आउट फ्रॉम वन वेबसाइट एंड गो ऑन अनदर वेबसाइट। तो फिर रेवेन्यू की तो बंबू लग गए, पर हुआ उल्टा। टुडे गूगल इज गिविंग द मैक्सिमम एड रेवेन्यू। यस, उसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने सोचा कि google.com पे हम कोई भी ऐड नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अगर सर्च इंजन के लिए वो डिस्ट्रैक्शन होगा, जब वो सर्च करेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा उसके प्रेफरेंसेस क्या है। अगर कोई सर्च कर रहा है कि मुझे मारुति कार, ऐसा कोई सर्च कर रहा है, मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग मारुति कार, तो चलो मारुति का एड्स देते हैं उसको, या कार्स के एड देते हैं उसको, या मारुति का जो कॉम्पिटिटर है उसके एड्स देते हैं उसको। एंड सडनली एक नया सिस्टम बन गया रेलेवेंट एड्स का, whereas relevant ads were not in picture at all। जिसको, जो अल्कोहल पीता ही नहीं है उसको मैकडोनल्ड्स की एड देके फायदा क्या है? एक स्पिरिचुअल गुरु को मैकडोनल्ड्स का एड देके क्या फायदा है? वो तो वेस्ट है ना पूरा पैसा। या अगर जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है उसको आईपीएल का एड दिखा के फायदा क्या है? राइट? जिसका, जो 1 BHK में रह रहा है, जिसके खाने के वांदे है, उसको फरारी का एड दिखा के फायदा क्या है? तो ये कंप्लीटली नया मॉडल बाहर आ गया। व्हाई? बिकॉज गूगल वाज वेरी क्लियर अबाउट देयर व्हाई, कि हमारा एड्स पहला मकसद नहीं है, इट्स अबाउट सर्च इंजन। लोगों को पूरी दुनिया सर्च करने का हमने जिम्मा उठाया है, और बाद में हम रेवेन्यू का देख लेंगे। जब बाद में आया तो ज्यादा बेहतर आया उनके लिए। राइट? ऑलराइट। So I was talking about leadership. No, as I said, I gave the example of son and mother.
दैट कि वो जब वो रिमोट देता है अपने मदर को एंड ही सैक्रिफाइसिंग हिज फेवरेट क्रिकेट मैच, ही बिकम्स द लीडर ऑफ द हाउस. और एक एग्जांपल ऑथर ने दिया था, हस्बैंड, एक हस्बैंड को एक प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट मिला है, वो बहुत खुश है एंड ही वांट्स टू शेयर दिस गुड न्यूज विथ हिज वाइफ. ही कम्स होम विथ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट and no brings the bell, enters the door, only to see that his wife has gone mad. बहुत गुस्से में है बिकॉज आज काम वाली बाई नहीं आई थी और सब काम उसको करना पड़ा. और वो जो पति है, he keeps quiet, he postpones his excitement of sharing the good news of promotion for a later date and listens to his wife with lot of empathy, right? वो तो बोल सकता है, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही दिन तो बाई नहीं आई, पहले मेरी बात सुन. ऐसा नहीं बोलता है वो. ही लिसन्स, अंडरस्टैंड्स हर पेन कि ठीक है, मैं बाहर कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, ये घर की जिम्मेदारी ले रही, वो भी तो एक काम है. और वो अगर बाई नहीं है तो उसको कितनी कठिनाई फेस करनी होगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. ही बिकम्स द लीडर ऑफ द हाउस. A leader is always full of empathy. He listens to his subordinates, his colleagues, his friends, his spouse with lot of empathy. See, listening और hearing में बहुत फर्क है. सपोज टिपिकली देखो, कॉफी ऑफिस में जो कॉफी वेंडिंग मशीन रहते हैं ना, वहाँ पे लोग मिलते हैं कॉफी पीने के लिए. हाँ, तो शाम के 6 बजे है और बॉस है वो एक अपने सबॉर्डिनेट को मिलता है. सो और बोलता है, सो हाउ वाज योर डे रीटा, हाउ वाज योर डे. एंड रीटा कॉफी पीते पीते बोल रही कि यस सर इट वाज गुड. ओके ओके, वो और वो जैसे ही वो बोलती है इट वाज गुड, अच्छा वो ईमेल का क्या हुआ, वो मैंने जो भेजा था तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, रेडी हो गया क्या. एंड ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड. मतलब ही डिड नॉट आस्क दैट क्वेश्चन विद सिंसियरिटी. उसको बस कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू करना था ताकि अपने काम की बात करें. दिस इज अ वेरी एन एग्जांपल ऑफ अ बैड लीडरशिप. जब वो बात कर रही है कि हाँ सर इट वाज अ गुड डे, पर उसका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेइंग समथिंग एल्स, कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो सिर्फ वो आंख नहीं मिला रही है मुझसे, उसपे दिमाग में कुछ और है और जबान पे कुछ और है. एंड इफ दैट बॉस सेज कि आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, इज एवरीथिंग राइट एट होम, आर यू ओके, एंड देन ही ट्राइज टू हेल्प हर टू ओपन अप. और फिर वो बोलते कि हाँ थोड़ा घर में थोड़ा इन लॉज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारे इश्यूज है, तो थोड़ा मैं स्ट्रेस में हूँ. ओह इज इट, सो कैन आई हेल्प यू, डू यू वांट टू लीव टुमारो, आई एम विथ यू, you and me are not just for office work, I'm with you for all the problems that you face in your life. Now that is a very good example of a servant leadership. आज के जमाने में लीडर को सिर्फ पगार दिया तो उसका काम खत्म नहीं हुआ है. He has to take care of his subordinates like parents. Leadership is parenting. You have to take care of your subordinates like you take care of your children, right? 10. नहीं तो बताओ मुझे कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया है, क्यों बनाया होगा, कभी सोचा आपने. एक कोई फॉरेन, दो फॉरेन लड़के जो पूरे जिन्होंने गूगल शुरू किया, वो तो अभी बाहर निकल गए और पूरा का पूरा कंपनी की जिम्मेदारी एक कोई थर्ड पर्सन, वो भी अमेरिकन नहीं है, इंडियन है, सुंदर पिचाई के हाथों दे दिया. क्या लगता है, बिकॉज सुंदर पिचाई इज अ बेटर कोडर देन अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इज इट. मैं तो बिल्कुल लगता है गूगल के अंदर ही सुंदर पिचाई से अच्छे अच्छे कोडर्स और एल्गोरिदम बनाने वाले रहेंगे, है ना. Why Sundar Pichai is made the CEO of Google? He is an amazingly empathetic person. आप उसके इंटरव्यूज देखो, very simple, down to earth, full of humility, सिंपल बंदा है और ऐसे ही लोग आगे जाते हैं. सचिन तेंदुलकर को कभी आपने देखा है इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें करते हुए, किसी के अगेंस्ट बोलते हुए, कभी नहीं. He always spoke through his bat. मेरे को अभी भी याद है एक इंटरव्यू, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने कुछ 200 की पार्टनरशिप बनाई थी, या एंड हर्षा भोगले उनकी इंटरव्यू ले रहा था. और हर्षा भोगले ने जब सौरव गांगुली को पूछा कि सो टेल मी कि किसकी वजह से ये 200 रन बने, एंड यू नो आई लव द वे राहुल द्रविड़ सेड नो नो सब गांगुली की वजह से हुआ, गांगुली सेड नो नो सब द्रविड़ की वजह से हुआ. सो बोथ आर गिविंग क्रेडिट टू ईच अदर एंड आई फेल इन लव विद बोथ ऑफ देम. हालांकि वो पार्टनरशिप थी, दोनों इक्वली जिम्मेदार थे,
बट दैट इज हाउ. कुछ हुआ क्या? इज एवरीथिंग ओके? Yes, yes, Yes. yeah. Okay. अच्छा, there was some problem. I saw something else on the screen. So this is how, they both became leaders in my eyes. They did not take credit to themselves, although they contributed equally. They were giving credit to each other. ऐसा है. So हमको लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में अगर मैं अच्छा बोलूंगा तो मेरा धंधा कम हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. If Shahrukh Khan says that Amir Khan is a better actor than me, your respect for Shahrukh Khan will increase 10 times. Yes or no? पर ये बोलेगा नहीं शाहरुख खान कभी. प्रॉब्लम ये है. That's the problem. But you know what? I think this is what leadership is all about. That you stand for the category and not for your product and services. When you start talking about the category, like when I started talking about reading habit and not booklet app, तो क्या हुआ पता है? सब रीडिंग ऐप के ओनर्स मुझे अप्रोच करने लगे. And I became the leader of the category now. And then now there is no competition. They all think that they are under me. पर ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली इन रियलिटी, राइट? आई थिंक मेरा स्क्रीन थोड़ा चेंज हो गया. ओके, या. सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. या, फोर्ड हेनरी ने जब पहली बार उन्होंने कार बनाने का सोचा, तो वो बोलता है कि अगर मैं लोगों को पूछता कि आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि और फास्ट दौड़ने वाले घोड़ा गाड़ी. क्योंकि जिनको कार पता ही नहीं है उनको पूछ के फायदा क्या है. वो क्या बोलते जा सकता कि और तेज दौड़ने वाले घोड़ा गाड़ी बनाओ, ऐसा बोलते. सो व्हाट ही डिड वाज, जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जो लोगों को पता ही नहीं है, कंप्लीटली नया है, देन डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, टॉक अबाउट द कैटेगरी. जैसे बुक समरीज वाज अ कंप्लीटली न्यू थिंग, so I did not talk about book summaries. I talked about the category, reading habit. So always stand for your reading habit. इसमें डर क्या होता है कि if I promote the category, so don't you think I'm helping my competitors as well? Yes, you are, but in the short run. In the long run, people will come to you because you stand for the category, not only for your product and service. So always talk about your category. लीडरशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं सीखा हूँ साइमन सिनेक से. हाउ टू डील विथ योर कलीग्स, योर सबऑर्डिनेट्स, द कम्युनिकेशन. सी कल्चर, कंपनी का कल्चर बोलते हैं. कल्चर मतलब एग्जैक्टली क्या? सो कल्चर इज इक्वल टू वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन. आई रिपीट, an organizational culture या household culture, family culture is equal to values plus communication. आप कैसे बात करते हो is more important than आप क्या बात करते हो. How you speak is more important than what you speak. जैसे अभी अभी प्रवीण मेरे को कंटिन्यूसली सुन रहे एकदम ध्यान देके, और कुछ मेरा प्रवीण का कुछ झगड़ा हो जाता है, और फिर 4 दिन के बाद मुझे लगता है कि नहीं, गलती मेरी थी, और मैं प्रवीण को फोन लगाता बोलता हूँ, हाँ प्रवीण सॉरी चल. अभी ये सॉरी का कोई मतलब नहीं है, उल्टा प्रवीण और गुस्सा करेगा. Although I'm saying sorry, how I'm speaking sorry is actually मैं मेहरबानी कर रहा हूँ वैसे उसमें. But if I actually आंखों में आंख डाल के उसको मिल के हाथ जोड़ के बोलूंगा, प्रवीण I'm really sorry for what I said that day. मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था. जो शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया, it was really hurting, and अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी हर्ट होता. I really apologize for all the words I used. Now that is real communication. Yeah, so culture is values plus communication. तो मैं अभी क्या करता हूँ यूजुअली, अभी फरीद करके एक मेरा कलीग है जिसके साथ मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है बुकलेट में. काफी लोग बुकलेट में अभी काम कर रहे हैं, बट फरीद इज माय अमित शाह, इज माय राइट हैंड. तो मतलब इनडायरेक्टली मैं खुद को मोदी नहीं कहला रहा हूँ, मैं बस एक सब बोल दे रहा हूँ. तो अभी क्या होता है, एक बार पहली बार 4-5 साल पहले जो नया था बुकलेट में वो, तो मैंने उसको कुछ एक्सेल शीट पे काम करने को दिया था. बहुत सारा नंबर क्रंचिंग करना था एक्सेल शीट पे, और फिर उसने 1 घंटा काम किया और मुझे बुलाया.
और मैंने देखा कि अरे यार उसने वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, सबसे अच्छी चीज एक्सेल शीट में क्या है, लिंकिंग द सेल्स। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो एक्सेल शीट का पूरा फायदा नहीं ले रहे हो। आपको पता है लिंक करना चाहिए। लिंक करने से क्या होता है, अगर एक आप नंबर एक सेल चेंज करोगे तो बाकी सब सेल्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सेल। तो उसने वो लिंक नहीं किया था, उसने सब कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे किए थे और वो मैन्युअली सेल्स में डाले थे। अभी नॉर्मली एज अ बॉस लीडर आई वुड हैव शाउटेड, पागल है क्या, इतना नहीं समझता, एक्सेल शीट पे ऐसे नहीं करते, या ये एक्सेल शीट है किसके लिए, ताकि आप वहीं पे कैलकुलेट करो और सब लिंक करो एक दूसरे से, ताकि सब एक ही की पे पूरा चेंज हो जाता है। पर मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज आई हैड रेड दिस बुक स्टार्ट विद व्हाई, आई न्यू द पावर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, सर्वेंट लीडरशिप। मैंने क्या किया, आई टुक अ पॉज, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, बोला ठीक है बाद में करते। देन आई टुक कुछ 2-3 घंटे के बाद लंच टाइम हुआ, और लंच टाइम में मैंने क्या उसको बताया, पता है क्या, you know what, 90% of the mistakes that our subordinates commit, they were committed by us when we were new to this organization. 90% of the, इसको बोलते हैं beginners mistakes. An expert was also a beginner at one point at time, yes or no? तो मैंने भी ये गलती की थी, बट ये सोचने के लिए आपको बहुत सारा ह्यूमिलिटी लगती है। दूसरा कोई गलती करता है, हम तुरंत उसको ब्लेम करते हैं, जब हम गलती करते हैं तो हम अलग तरीके से देखते हैं उसको। इट्स अ वेरी गुड लाइन सेज, व्हेन वी जज अदर्स वी जज देम बाय देयर एक्शंस, एंड व्हेन वी जज आवरसेल्व्स वी जज बाय आवर इंटेंशंस, कि नहीं मेरा इरादा तो नेक था, गलती हो गई। तो दूसरों को जब बोलते हैं तो ए साला तेरे को अक्ल ही नहीं है, ऐसी गलती करता है। अगर दूसरा कोई गाली दे तो वो बुरा है, वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं। अगर हमारे मुंह से कोई गाली निकल गई दोस्त के लिए तो हम क्या बोलते, अरे मेरा वो इरादा नहीं था रे, तेरा दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था, मैं बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया रे। सी हाउ वी ट्राई टू शो आवर इंटेंशन, whereas एक्चुअली सामने वाला हमारा सिर्फ एक्शन देखेंगे। सो वी ऑलवेज जज अदर्स बाय देयर एक्शन एंड वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशन। उल्टा होना चाहिए, judge others by their intention, not by their face value, and judge yourself by your actions. तो क्या हुआ, तो मैंने लंच पे उसको बोला कि अरे फरीद तुझे पता है कि जब मैं नया नया एक्सेल शीट पे था तो मैंने ये गलती की थी कि मैंने ना लिंक सेल्स को लिंक नहीं किया था, और मैं कितना स्टूपिड था। एंड फरीद गॉट द मैसेज, और उसको पता ही नहीं चला कि मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ही डिड द परफेक्ट जॉब। सो आई थिंक यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये एडमिट करना कि मैंने भी ये गलती की थी, ऐसे बोलने से ना सामने वाला सडनली ही इज फियरलेस। नाउ आई एंड फरीद आर ऑन द सेम लेवल, इट इज नॉट आई हैव हैड अपर हैंड, और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं है, वी आर एट द सेम लेवल। द मोमेंट यू एडमिट अ मिस्टेक in front of the other person, you are on the same page. The other person becomes more receptive. वो अभी वो बिंदास हो जाता है, वो उसका डर चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू नो देयर इज वन ऑथर इन द वर्ल्ड हु सेज, हु इज द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं बोलता हूँ मोस्ट हम्बल ऑथर। ऐसा किसी भी ऑथर ने अपने प्रीफेस में नहीं लिखा है दैट इफ एट ऑल यू कम अक्रॉस टू कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज इन माय बुक, प्लीज टेक द लेटेस्ट व्यू। ऐसा कौन बोलता है कि मैं खुद ही शायद मेरे व्यूज को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा मेरे बुक में, अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ तो आप लेटेस्ट व्यू लो। ऐसा किसी कोई भी ऑथर ने बोला नहीं एक्सेप्ट वन। पता है वो कौन ऑथर है? एनी गेसेस? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनके सबके बुक्स के प्रीफेस में ऐसा लिखा है। नो वंडर व्हाई he is followed by the entire world. Do you know there is one person, गांधी जी, जिनके ऊपर हर साल अभी भी more than 70 books लिखे जाते हैं। More than 70 books per year are written on Mahatma Gandhi after his death. So after so many years, पूरी दुनिया में the most written person on planet Earth is Mahatma Gandhi. सरप्राइजिंग ना? हमको लगता है हम आजकल गांधी जी को गाली देना तो एक फैड हो गया, राइट? पर दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। एंड देन
Gandhiji admitted that he visited prostitutes, he used to smoke, he used to drink, he used to eat meat. सब उसने accept किया, and that's why he has become the father of the nation. वो हमको लगता है कि वो दांडी यात्रा और ये सब वो सब इम्पोर्टेंट, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट था. नो मतलब नंगे से तो भगवान भी डरता है. तो पहले अपनी गलतियां सब पूरा दिखा दो सामने वाले को, and the other person will accept you as a leader. Sharing your weakness, talking about your weakness, makes you a leader. Asking for help makes you a leader. You know this? Asking for help is not a sign of weakness, it is a sign of humility. All right. So that was the example which you can note down about empathetic communication as a leader. Excel sheet वाला जो example है, I think will always help you to remember the communication whenever you communicate with other people. Always think from other person's point of view, and your answer will be different. Trust me. एक बार क्या हुआ था, मेरे घर की काम वाली भाई लॉकडाउन के पहले आती थी, और मैंने देखा कि उसके ना बर्तन ठीक से धो नहीं रही थी. वो नीचे एकदम कुछ खाना ऐसा रह रहता था, या डिटर्जेंट पाउडर के कुछ अंश वहां पे रहते थे. तो एज अ बॉस लीडर मैं उसको चिल्लाना चाहिए था, अरे क्या है, काम चोर औरत है, आजकल की काम वाली तो काम ही नहीं करते, बस पैसा चाहिए ऐसा. बट आई टुक अ पॉज, मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया. सी, टेकिंग अ पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा फरीद के केस में भी आई डिड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. I took a pause of 2-3 hours and then responded during lunch time. Pause क्यों important है मालूम है? बहुत अच्छा लिखा है, विक्टर फ्रैंकल ने एक किताब लिखी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग. मैन सर्च फॉर मीनिंग, और बहुत अच्छा लिखा है उसमें. उसने बोला कि between stimulus and response between stimulus and response there is a space. In that space there is a pause button. In that pause button lies your freedom to choose your response. And in your response lies almost everything. Your happiness, no happiness, growth, no growth, success, failure, relationships, break, सब कुछ. I repeat, between stimulus and response there is a space. उस स्पेस में आपका रेस्पॉन्स क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हो, वो आपको करना है. तो हुआ क्या, तो वो काम वाली भाई वो काम ठीक से नहीं कर रही थी, तो मैंने पॉज लिया और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं कि सब बर्तन वो खराब धो रहे थे. टिपिकली एक ही बर्तन था जो खराब था, और वो था मेरा दूध का जो मग था ना. मैं बहुत सारा दूध पीता हूँ, तो वो लंबा वाला मग था. मग ऐसे ना बड़े वाले मग, उसको बड़े बड़े हैंडल रहते हैं, उसमें मैं दूध पीता हूँ. तो और उसमें मैं मेरा वे प्रोटीन पाउडर और क्या 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 डालता हूँ, तो नीचे रह रहा था. तो बिकॉज वो कप नैरो था और वो मोटी थी, तो उसके हाथ मोटे थे, तो उसका हाथ नीचे तक नहीं जा रहा था, टिल द बॉटम ऑफ द कप मग, और इसलिए वो क्लीन नहीं हो रहा था. Now when I took a pause, I got this better picture, और वो मेरा काम था उसको वो क्लीनर लाके देना, ताकि वो ऐसे लंबे वाले बर्तन भी साफ कर. सी द होल अप्रोच चेंज, वरना मेरा कम्युनिकेशन वुड हैव बीन अ डिजास्टर ना. बिकॉज बाकी के बर्तन तो ठीक थे, जो शैलो थे वो सब ठीक थे, उसका हाथ मोटा था तो अंदर नहीं जा रहा था. सो दीज थिंग्स चेंज व्हेन यू बिकम एन एम्पैथेटिक लीडर, व्हेन यू बिकम अ सर्वेंट लीडर. वो एक्चुअली सर्वेंट है, but I became a servant leader. And what bigger example can we have than our honorable Prime Minister? He considered himself as a servant leader as well. I don't want to be sounded politically inclined, but I believe he is a servant leader. Uh, I think I've discussed in length. अभी कुछ discussion करते हैं ताकि we can make the discussion more relevant. So if you have any questions, Ashish, Praveen, Shrijit, शैलेंद्र भाई, आपको कुछ सवाल रहेगा तो Yeah, we can take some questions right now. Ashish. Yes. Yeah. So friends, with that, I think we begin our question answer session over here. I request everybody to please paste your questions in the chat box.
और फिर वहां से हम आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे. We'll ask Amrut. And okay, so there is a question from Sarvesh. He's asking about startup failures that you might have faced. Yeah, I think it's a relevant question for this book. I realized why I failed on all those 3 startups because मुझे लगता था मेरा why पैसा है. Money or profits can never be your why. और होता क्या था, आई गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है पता है, जो भी सामने वाला को, जो नया इंसान को मिलेगा ना, अभी सपोज वो आशीष को मिलेगा, अच्छा आशीष को क्या अभी क्या चाहिए, उसको वेबसाइट डिजाइनिंग की जरूरत है, तो बोलता है हाँ मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ. हाँ, फिर वो धर्मेंद्र को मिलेगा, अच्छा आपको क्या, अच्छा उसको विजिटिंग कार्ड की जरूरत है, वो बोलेगा मैं विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ. हाँ, फिर दूसरा कोई बोलेगा कि मुझे ना बल्क एसएमएस सर्विस का कोई प्रोवाइडर चाहिए, वो बोलेगा हाँ वो मैं भी करता हूँ. वो एक्चुअली क्या करता है, वो किसी से कनेक्ट करो के कमीशन खाता था सब जगह पे. हालांकि वो शॉर्ट टर्म में उसने पैसा कमाया, बट इन द लॉन्ग रन ही इज द मोस्ट डिससैटिस्फाइड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट. एंड अगर मैं किसी को पूछूं ना, अरे वो मेरा दोस्त क्या करता है, नोबडी नोस वो करता क्या है, बिकॉज फॉर हिम द कॉमन थिंग इज मनी. So how you make money is more important than making money. आपको एक ही जरिए से पैसा कमाना, मतलब I mean saying in your business you can't say that I offer everything. You have to narrow down so that you are very clear कि मैं ऐसे लोगों के लिए ही खड़ा हूं. If booklet guy says कि नहीं बुक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, स्टैंड अप कॉमेडी में से नॉलेज मिलता है, you guys will lose faith in me. I have to take a very strong stand and say that I stand only for those who believe in the power of reading habit. जिनके लिए स्टैंड अप कॉमेडी पूरी उनकी दुनिया है, आई एम नॉट फॉर देम, सॉरी. उससे क्या हुआ, लाइक नाइकी पीपल, people who did not believe in books, they at least shared my TED talks with their friends who like books, who like reading. Are you getting my point? आपकी आइडेंटिटी क्लियर करता है आपका why. आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ व्हाई, राइट. एंड वो एग्जैक्टली था मेरे 3 स्टार्टअप्स में कि देयर वाज कंप्लीट लैक ऑफ व्हाई. आई बिलीव दैट money is one of the stupidest results of you achieving your why. As I said, your why is your belief, your value system, is your culture. Your how is the system of achieving your and what is your tangible proof of you achieving your why. As I said, my why is Mission Make India Read. How do I do it? By reading books for India. What I do it for it? Through Booklet app, through my book, 7 Habits of Highly Effective Readers, by giving such talks and making the books alive and teaching you a book. And the best compliment I got from somebody is that, Amrut, you explain books better than the author himself. I think that was the best compliment I ever got till now. That I teach a book better than anybody else. So that's why my why is so strong. So I would not like to get into the technical things of my startups. That won't be very fruitful. But the main reason why they failed was the missing why. All right, so we have a question from Mr. Harikant. He says उनके पास एक reading habit बनाने का try किया था, but it discontinued. So Harikant ji, I would recommend you that you read Amrut's book of 7 Habits of Highly Effective Readers, and I'm pretty sure कि वो book पढ़ने के बाद और उनके book summary से चालू कीजिए, start small कीजिए. अमृत ने शाहरुख खान की बात की थी, तो शाहरुख खान भी कहता है कि small मिलाते जाओ, large बढ़ाते जाओ, बनाते जाओ. Context उसका अलग है, वो एक ad था, लेकिन डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा. नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मिस्टर एसके पांडे का, दैट हाउ टू रिस्पॉन्स विद अ पॉज बटन व्हेन यू आर एंग्री, हाउ टू मैनेज इट. वो पॉज बटन गुस्से के टाइम पे कब लाने का और कैसे लाने का? I agree, it's not easy. It takes lot of practice. And I think it comes when you listen to the other person with the intention to understand that person and not with an intention to reply. आमतौर पे क्या होता है, जब अमृत और आशीष आकर मिलेंगे किसी घर में या किसी नुक्कड़ पे, और आशीष मेरे से बात कर रहा है, वो कुछ बता रहा है, अरे मैंने ना आज ये किया, वो किया, आज मुझे वो मिला. नाउ आई एम लिसनिंग टू हिम विद एन इंटेंशन टू रिप्लाई कि वो कब उसका बकबक करना बंद करेगा और अभी मैं मेरा बताऊंगा. क्योंकि
By the time he's talking, मुझे मेरा कोई स्टोरी याद आता है, and now I want to interrupt him and speak. ये सब जगह पे यही हो रहा है. The whole world wants to talk. But we all crave to listen. We all love to talk, and we love people who listen to us. The best way to influence the other person is to allow him to influence you. बस सुनना है, वो भी with an intention to understand. फिर गुस्सा नहीं आएगा तुरंत कि अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे एक हाउस पार्टी में बुलाया था खाने के लिए, और एक वहां पे लड़का था, तो मैंने उसको और मैंने सुना था कि ही हेट्स बुक्स, तो जानबूझ के मैं उसके पास गया, और वो मुझे, अमृत कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मिशन, यू आर डूइंग वेल, नो गेटिंग फेमस बुकलेट गाय. आई सेड थैंक यू, सो इट सीम्स यू आर ऑन बुकलेट ऐप. नो, मेरे को ये के फालतू टाइम नहीं है, मेरे को पबजी खेलना है, मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है तेरे ऐप के लिए. अभी आइडियली आई शुड हैव गेट एंग्री कि तू मेरी तारीफ कर रहा है और फिर मेरी मार रहा है बाद में. बट देन आई टुक अ पॉज and I tried to understand why he is saying what he is saying. Where is he coming from? Fine, video game pasand hai tumko, so I tried to change my conversation. So I heard that you love video games and I admire your passion for video games. तो बोला अच्छा sarcasm, हाँ खींच रहा है मेरी. No, I really mean it. That's fine, कुछ गलत नहीं है. You must have become great at PUBG. Okay, so how about, would you like to know how these games are made? I've read a couple of books called On Game Thinking, like actionable gamification. ऐसे books मैंने पढ़े हैं which will teach you how to create such great famous games like PUBG and Candy Crush. Would you like to? Are you interested in to know this? Now he started listening to me interested. Yeah, that is great. पर तेरा मोबाइल का साइज क्या है तेरे ऐप का? मेरा उतना स्पेस नहीं है. I said okay fine. Do you have WhatsApp? He said yeah, WhatsApp है. तो WhatsApp पे अगर बुक्स भेजूंगा तो चलेगा क्या? Yeah, that will be fantastic. मेरे पास WhatsApp है, मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं. And I left the party halfway, and then I got in touch with the WhatsApp team in US कि ऐसा कोई बॉट बनाने का भी शुरू हुआ है क्या? And there I get what an idea. अभी एक पूरा नया आइडिया आ रहा है, बुकलेट बॉट्स ऑन WhatsApp. हर एक बुक का बॉट बन रहा है, मतलब स्टार्ट विथ वाई बॉट ऑन WhatsApp. आपको बस बुक पे क्लिक करना है, बहुत सारे बुक्स रहेंगे पेज पे, ईट दैट फ्रॉग, स्टार्ट विथ वाई पे क्लिक करो, आपका WhatsApp ओपन होगा एंड स्टार्ट रीडिंग द बिग आइडियाज दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन WhatsApp. तो बॉट आपको वो बिजनेस मैसेजेस भेजेगा. तो देखो एक गुस्से वाला कॉन्वर्सेशन वो अवॉइड होके मुझे एक बड़ा आइडिया उसमें से मिला बाय सिंपल पॉज. व्हाट इज, लुक एट द पावर ऑफ अ पॉज, राइट? तो करना पॉज, आई थिंक करना क्या, चुप बैठना है. आई थिंक चुप बैठना आइडियली सबसे आसान होना चाहिए. पर ठीक है, उसको टाइम लगता है. ओके, वो जैसे सदगुरु ऐसे बात करते हैं नो आराम से, ही इज नेवर फास्ट इन स्पीकिंग, ही टेक्स अ पॉज. वैसे करना है हमको. वाओ, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था. वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट एंड व्हाई. आपका एप्लीकेशन, आपके फीचर्स, जैसे सैमसंग एप्पल की बात की थी, तो दैट इज योर व्हाट, आपका व्हाई नहीं है. बट इफ योर व्हाई इज क्लियर देन डेफिनेटली आपको नए नए व्हाट मिलते रहेंगे. परफेक्ट. सो आई थिंक अभी देखो एक और एग्जांपल मैंने मिस किया था आशीष, सॉरी टू इंटरप्ट. जैसे जब म्यूजिक इंडस्ट्री था, जिनको those who were lost that they stand for the products, जो कि हम सीडी बेचने वाले धंधे पे हैं, were wiped out because of Netflix. Perfect. Right? If they thought that no, we are here to sell the art, cinematography, तो शायद उनको भी Netflix का आइडिया आता था. See, it is so important to understand your why. कहीं ना कहीं वो एक अपने मैसेज से एलियनेट हो गए थे, साइड में चले गए थे. और आपने जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात की थी, वो आइस ब्रेकर की, अरे भाई मैं तो खाली बर्फ वो लेक से निकाल के बेचता हूँ, मेरे को लोगों को आइसक्रीम खिलाने का या ठंडी देने का काम नहीं है. तो वहां पे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया उनका चेन, और चेन टूट गया तो गायब हो गए. सो आई विल टेक माय फाइनल क्वेश्चन नाउ. एक क्वेश्चन है मिस्टर सर्वेश का, वंस अगेन. He's asking that how do you communicate the problems and the purpose with your team? Communicate आप कैसे करते हो ताकि आपका टीम के साथ तालमेल एक अच्छी तरीके से बना रहे,
and वो आपका जो why है वो बरकरार रहे, it does not get deviated from there. वेरी गुड क्वेश्चन. सी होता क्या आजकल के लीडर्स है ना, सबसे ज्यादा रोजमर्रा काम के बारे में बात करते हैं. ये ईमेल को रिप्लाई करना है, ये पावर पॉइंट बनाना है, ये एक्सेल शीट करना है, ये रिपोर्ट बनाना है, अरे इसका क्या हुआ. दे जस्ट टॉक अबाउट द टू डू लिस्ट. हमको वो नहीं करना है. हमको इनफैक्ट एज अ लीडर आई टॉक अबाउट व्हाई ऑलमोस्ट एवरी डे. अभी एक एग्जांपल देता हूँ. सो फरीद वाज कमिंग क्वाइट लेट बाय 15-20 मिनट्स, ऑलमोस्ट 50-20 मिनट्स ऑलमोस्ट एवरी डे. सो 9:30 का टाइम है एंड वो 9:45 को आता था. सी नाउ पुटिंग सीसीटीवी कैमरास, बायोमेट्रिक, वो सब एक्सेस वगैरह ना, दैट इज शियर नॉनसेंस इज व्हाट द ऑथर सेज. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दैट शोज क्लियर लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर कल्चर, राइट. और तो मैंने उसको बोला कि क्या दिक्कत क्या है, कि क्यों ले. पहले तो मैंने ऐसा नहीं फटका है कि क्या अकल नहीं है, रोज 9:45 बजे आता है, तेरे को मालूम नहीं है क्या पगार काटू क्या. नो, वो जमाना गया. दैट वाज इंडस्ट्रियल एज. इट इज नाउ नॉलेज वर्कर्स एज. आई आस्क्ड हिम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज एवरीथिंग ओके एट होम. फिर उसने बोला कि अम्मी थोड़ा डब्बा लेट बनाती है आजकल, तो थोड़ा मुझे लेट होता है. देन आई टुक अ पॉज. I waited for the lunch break, and then I thought, इस पे क्या हो सकता है? Yeah, now what I thought was, I put myself in Ammi's situation, in Ammi's shoes. This is called as business empathy. जब भी आपको कोई आंसर चाहिए ना, आइडियल आंसर, तो आप खुद उसके शूज में डालो एंड देन लुक कि अगर मुझे ऐसा आंसर आएगा मेरे बेटे से, तो मैं टाइम पे डब्बा बनाऊंगी, राइट. एंड आई टोल्ड फरीद कि जाओ कल आज शाम को जब जाएगा तो अम्मी को बताओ कि देखो मैं सिर्फ ऑफिस में काम करने नहीं जाता है, हम एक मिशन पे है, मिशन मेक इंडिया रीड. आज 40 लाख जुड़ गए हैं, एक दिन 1 करोड़ होने वाले हैं, और कल जाके भारत सरकार भी उसका नोट ले सकते हैं, बहुत बड़ा हो सकता है. तो हम उसके लिए मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए कि अगर 9 से पहले डब्बा तैयार हो जाएगा, तो ये मकसद को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है. दूसरे दिन से फरीद बिफोर टाइम 9:25 उसके पहले he started coming on time. So this is what you have to talk about, your why and not the what's. You have to keep your, you have to take care of your employees like your children, like parenting. बाकी के सब, then our employees will take care of the customers. No, we always say that customer is always right. No, not anymore. हम लोग फायर योर बैड एम्प्लॉयज बोलते हैं. यस, फायर द बैड एम्प्लॉयज. कभी फायर योर बैड कस्टमर्स ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं? ऐसा कोई टिपिकली ऐसे 1-2 कस्टमर रहते, वो ना छोटा सा कुछ लेते और खिचखिच इतना करेंगे ना, रात को 12 बजे फोन करेंगे, धंधा तो इतना सा देते पर बवाल इतना करते, और उससे सबको अगर हेडेक हो रहा है, जस्ट फायर हिम. यू आर नॉट फॉर हिम. अगर एक आदमी से मेरे 5 एम्प्लॉयज को हेडेक हो रहा है, so my employees are more important to me than the customers. Because if I take care of my employees, their employees will take care of my customers. If my employees are happy, they will keep my customers happy. Right? So fire your bad customers the way you fire your bad employees. Wow, so that was a wonderful insight. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन होगा. अनुज कुमार रस्तोगी जी पूछ रहे हैं कि हम हमारे वाई को रेवेन्यू से कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें अर्न करना है, हमारे टीम के लिए भी अर्न करना है, और वी हैव टू सपोर्ट द पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन अस. तो वाई क्लियर हो गया, लेकिन वाई को हम अपने रेवेन्यू से कैसे कनेक्ट करें? वेरी गुड. सी एज आई सेड, कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं करना है. हाउ यू मेक मनी, द सोर्स ऑफ योर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग मेड मनी. Okay, I had many options. I gave the example of putting an ad in Booklet app. वो गया. सब्सक्रिप्शन फीस डालना एक ऑप्शन था, वो भी निकल गया, बिकॉज लोग 300 रुपए का पिज्जा तो लेंगे, पर 150 रुपए का बुक खरीदने के लिए 2 बार सोचेंगे. सो फ्री वॉज द ओनली वे टू मेक इंडिया रीड. फिर मैंने सोचा, हाउ अबाउट राइटिंग अ बुक ऑन रीडिंग हैबिट, एंड वाओ, परफेक्ट. इट वॉज परफेक्टली इन अलाइनमेंट विथ माई वाई. My why is reading habit, to cultivate reading habit. And if I write a book, 7 Habits of Highly Effective Readers, it's a perfect win-win. It's a perfect syncing. अच्छे sync हो रहा है.
So आपका revenue stream should nicely sync with the higher purpose. It should blend with your why. ऐसे आप चूजो. अगर for that ना, you should know what not to do. पहले तो आप ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स निकालो जो आपको नहीं करने, और फिर जो बचेंगे वो आपका वो करने. So what you don't do is more important than what you do. It is said by Steve Jobs when he was on his deathbed. जब उसको कैंसर हुआ था और अभी श्योर शॉट था कि वो मरने वाला है कुछ दिनों में, तो बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग ऑफ फेसबुक एंड और कौन था, जेफ बेजोस ऑफ अमेज़न, ये तीनों उसके रूम में थे, हॉस्पिटल के रूम में. एंड आई थिंक बिल गेट्स केम आउट विद दिस क्वेश्चन कि वी आर रियली सॉरी, नो डॉक्टर्स हैव गिवन अप and you'll be leaving this world soon. What is the one message that you would like to give to three of us, because we are the ones who are going to take the corporate world ahead? And he said one line: what you don't do is more important than what you do. और मैं हैरान हो गया, मेरे को समझा ही नहीं पहले ये ऐसा क्यों बोल रहा है. मुझे व्हाट यू डू मतलब कुछ नहीं करना है, इससे मैं सक्सेसफुल बनूंगा. मैं 6 महीने आई इन्वेस्टिगेटेड ऑन दिस लाइन कि स्टीव जॉब्स ने बोला मतलब पक्का कुछ डीप रहेगा. एंड देन आई अंडरस्टूड कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट कम टू योर वे, और हम सब लेने जाते हैं, अरे इसमें भी पैसा है, अरे इसमें भी पैसा है. अभी आज देखो, आज अगर मैं बोलूंगा कि मैं अचानक से फिटनेस की वीडियोस करना शुरू करूं जस्ट बिकॉज आई लाइक फिटनेस, या फिर मैं गिटार का कोई वीडियो, गिटार सीख रहा हूँ, मैं गिटार के वीडियोस डालूंगा, और मैं कुकिंग भी करता हूँ तो मैं कुकिंग की रेसिपीज डालूंगा मेरे चैनल, यू विल गेट कंफ्यूज ना. पैसा आ जाएगा मुझे सब जगह से, पर फिर आशीष धर्मेंद्र मेरे पास नहीं आएंगे एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेक्स्ट लेवल पाठशाला, बिकॉज आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाएगा. तो भाई ये करता क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं आप हमारे दोस्त सर्कल में होते कि इतना सब कुछ करते कि क्या करते समझ में नहीं आता. दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी क्राइसिस. वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाएंगे, लॉन्ग रन में नहीं कमाएंगे. या आई हैव अ लॉयर, आई हैड 2 लॉयर फ्रेंड्स, दोनों ने एक ही टाइम उनका करियर शुरू किया. हाँ, तो दोनों का तरीका देखो क्या था. हाँ, एक लॉयर ए ने क्या किया कि अगर क्लाइंट आएगा ना तो उसको पूरा चूस लेने का, 1.5-2 साल तक केस चलाने का, और फिर मैक्सिमम पैसा कमाने का. ठीक है. दूसरे ने क्या सोचा कि नहीं, मैं जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसका केस रफा दफा करूंगा, उसको जस्टिस मिलेगा, ताकि वो और रेफरेंस देगा, तो अगर वो खुश होकर मेरे पास से चला जाएगा तो वो और क्लाइंट लेके आएगा ना. पहले 5 साल में पहला वाला जो लॉयर था ना, जो लूट रहा था क्लाइंट को, उसने ज्यादा पैसा कमाया, और मेरा दूसरा दोस्त था वो मायूस हो गया, अरे मेरा ये वाला दोस्त बड़ा हो रहा है बहुत. पर 15 साल के बाद जो पहला वाला है ना, उसके 100 क्लाइंट्स के ऊपर कभी नहीं हुए, और इसके पास हजारों क्लाइंट्स है आज. Got it? Because he delayed his gratification, his why was strong. I want to do justice to my client, क्योंकि कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने को किसी को पसंद नहीं है, स्ट्रेस आता है बहुत ना. लोगों को बीपी हाई हो जाता है अगर 10-10 साल आप कोर्ट पे जाओ, और फिर वहां पे इंसल्ट होता है, बहुत कुछ होता है, क्रिमिनल केसेस हो, मैट्रिमोनियल केसेस हो. तो मुझे उनको छुटकारा देना है जल्द से जल्द. नाउ सी, एंड ही हैज बिकम वन ऑफ द फेमस लॉयर्स इन मुंबई. Whereas पहला वाला शुरू में उसने पैसा कमाया, बट इन द लॉन्ग रन ही इज लाइक गली में वो रहते ना छोटे मोटे लॉयर, वैसा ही है वो. 100 के ऊपर उसका कभी आंकड़ा गया नहीं. You see, कितना डिफरेंस. शुरू में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाई, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. Okay, always take decisions which will give impact in the long run. So एक बहुत ही फेमस सेइंग है, और ये अगर कोई महालक्ष्मी रेस कोर्स गया रहेगा ना तो उसने सुना रहेगा, इस पे पैसा लगाओ, ये लंबी रेस का घोड़ा है. एंड दैट लंबी रेस का घोड़ा इज योर वाई फ्रेंड्स. अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आई थिंक बाय नाउ जितना अमृत ने हमसे डिस्कस किया है, हमसे शेयर किया है, तो ये बात बहुत ही क्लियर है कि अगर आपका वाई एकदम क्लियर है, क्रिस्टल के जैसा क्लियर है, तो आपको शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा. What you give is what you get. और इसी के साथ इस पॉइंट पे we come to an end for this session, but over here I would like to take a moment. आज जो मैंने सीखा उस हिसाब से मैं पॉज लेना चाहूंगा और आप सबको ये बात बताने चाहूंगा कि यहाँ पे आप बहुत सारे लोग जुड़े हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर यू इन द हार्ट ऑफ योर एडवाइजर.
तो आप जरूर आपके एडवाइजर को एक थैंक्स कहिएगा कि उन्होंने आपको इस वंडरफुल सेशन में इनवाइट किया है। और इसी के साथ आप सभी को मैं एक रिमाइंडर दे दूं दैट एवरी 4th थर्सडे ऑफ द मंथ, जैसे कि श्रेया ने स्टार्टिंग में बताया था, अमृत हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया बुक्स का एक रिव्यू करेंगे, एक बुक का समरी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि अमृत का मिशन है टू मेक इंडिया रीड। और इसी के साथ हम सब काफी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी रहती है उसमें बहुत बिजी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये होता है। और वो ईट दैट फ्रॉग की बात की, वो बुक है प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कल कल कल, और वो कल कभी आज आता नहीं है। तो वो जो कल है वो आपका प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दिया है। ऑल सक्सेसफुल थिंग्स और ऑल सक्सेसफुल पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एंड हियर अमृत हैज सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम कि आपके पास समय नहीं है, तो वो समय मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको मेरा अनुरोध है दैट प्लीज रीड हिज बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। डाउनलोड द बुकलेट ऐप ऑन iOS एंड ऑन एंड्रॉइड, और आप उनकी बुक को पढ़ सकते हो समरी फॉर्म में। और उसी के साथ अगर आपको समरी फॉर्म में पढ़ना नहीं है, या किसी को ऐसे लगता है फोन में पढ़ने से आई स्ट्रेन होता है, आंख बंद करो, हेडफोन डालो और उनके ही आवाज में उस बुक की समरी को सुनो। So इसी के साथ we come to an end. And Ashish, Very much. Yes, there's a key that is asked when you download his app. People who are Right. downloading it for the first time, they can enter next level all in capital. राइट। सो फ्रेंड्स, आप जब उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको एक की पूछेगा, तो एक ताला है और वो ताले की चाबी है नेक्स्ट लेवल, ऑल कैपिटल्स में बिग बोल्ड लेटर्स में आप लिखिए, एंड स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द मिशन मेक इंडिया रीड। सो दैट इज इट फ्रॉम द फाइनेंशियल पाठशाला फॉर दिस थर्सडे। And once again, thank you very much, Amrut, for being a wonderful, wonderful speaker, a wonderful person. And आपका जो मिशन है उसमें आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, आई एम श्योर सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड टुगेदर वी विल मेक इंडिया रीड। Thank you very much. Amrut must read this before he leaves. Somebody by the name Mr. Akash has written, "Old days, Sant Tukaram were doing work. Similar work you are doing nowadays." अरे बाप रे, क्या बात। So I Thank you think so it much. was like a real superb feedback from the heart from Mr. Akash, Thank you. and I truly echo his feelings. Amrut, I also feel the same about you. Thank you. Thank you. Happy reading, and let's start with why. Bye bye. Bye bye.